अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टिंग ऑपरेशन हो गया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का स्टिंग ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसकी तुलना अब वॉर गेट, जी हां, वाटर गेट स्कैंडल से होने लगी है। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का स्टिंग ऑपरेशन अमेरिका की राजनीति में हड़कंप। So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes. ट्रंप ने नतीजे बदलने का डाला दबाव। जॉर्जिया में ट्रंप का नहीं चला था। You should want to have an accurate election. You're a Republican. वायरल ऑडियो का, वाटर गेट का, आगे ट्रंप का अब क्या होगा अंजाम? But have they moved the inner parts of the machines? ये सुनकर आपको शायद अपने कानों पर यकीन ना हो। ये भले ही आपको थोड़ा अटपटा भी लगे, लेकिन इस खबर से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उससे लगता है कि उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया है। न्यूज़ 24 पर आज आप सुनेंगे कैसे ट्रंप ने अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को बदलने के लिए वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर दबाव डाला। लेकिन पहले सुनिए कि जॉर्जिया के जो नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर ट्रंप कितने बेचैन थे। We have won this election in Georgia based on all of this, and there's nothing wrong with saying that, Brad. You know, I mean, having a correct. The people of Georgia are angry, and these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that. You know, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Now, do you think it's possible that they shredded ballots in Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. That Dominion is really moving fast to get rid of their machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal. This is Ryan, Germany. No, Dominion has not moved any machinery out of Fulton County. We're having... ट्रंप लगातार जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैड राफेन्सपर्जर से प्रांत के चुनावों में हेर फेरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो और उनके काउंसलर लगातार इसे खारिज कर रहे हैं। But have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. You sure, Brian? I'm sure. जब जॉर्जिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैड और उनके काउंसलर ट्रंप के आरोपों को लगातार खारिज करते रहे, तो ट्रंप भड़क उठे और उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने उन्हें रिपब्लिकन होने का हवाला भी दे दिया। You should want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. ट्रंप लगातार डेमोक्रेट्स पर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ और मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे, और प्रशासन उन्हें सिरे से खारिज कर रहा था। अब आगे की बातचीत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब ट्रंप का कोई दाव नहीं काम आया, तो उन्होंने सीधे सीधे वोटों में हेरा फेरी करने का तुर्रा छोड़ दिया। So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. एक बार फिर से वायरल ऑडियो में ट्रंप की ये लाइनें सुनी।
So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. ट्रंप यहीं नहीं रुके, वो आगे बढ़कर अजब गजब तरह की दलीलें देने लगे। For instance, I'm hearing Ryan, and he's probably, I'm sure, a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know. But he's making them with such, he did make them with surety, but now I think he's less sure, because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot. लेकिन ब्रैड अपने तर्कों पर डटे रहे। उन्होंने राष्ट्रपति होने के बावजूद ट्रंप की एक बात नहीं सुनी। Mr. President, you have people that submit information, and we have our people that submit information, and then it comes before the court, and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. ये सब ट्रंप इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जॉर्जिया में बाइडेन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर थी। यहाँ बाइडेन की जीत और ट्रंप की हार में मार्जिन भी बेहद कम रहा। दोनों के बीच फासला 11,779 वोटों का था। मतलब ये कि अगर ट्रंप के कहने पर जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 11,780 वोटों की हेराफेरी कर देते तो नतीजे कुछ और ही होते। अब इस ऑडियो के सामने आने के बाद अमेरिका की राजनीति में हड़कंप मच गया है। यूएस की नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। The current president of the United States called the Senate race in Georgia, most certainly that, and it was a bald-faced, bold abuse of power by the president of the United States. ट्रंप के इस कदम की तुलना अमेरिका के वाटरगेट कांड से हो रही है। आपको ये भी बताते हैं कि वाटरगेट कांड क्या था। वाटरगेट कांड अमेरिका के इतिहास में पहला मामला था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पद पर रहने के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। साल 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, उन पर कोर्ट के काम में दखल देने, राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग करने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने गवाही न देने के आरोप लगे थे। उन पर कुछ लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कमेटी के ऑफिस यानी वाटरगेट होटल में भेजकर जासूसी कराने के आरोप थे। वाटरगेट होटल के नाम पर ही इसे वाटरगेट कांड नाम दिया गया। फिलहाल इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अमेरिका की सियासत में भूचाल आ गया। राष्ट्रपति ट्रंप सबके निशाने पर है। अब देखना यह होगा कि 20 जनवरी तक राष्ट्रपति के पद पर बैठे ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।